से घूम के ठीक है यस। बहुत दिन बाद दे रहे हैं कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट तो दे रहे थे, वो बीच में ICPC भी जाके आया मैं। वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। और कल वाली कोड शेफ कॉन्टेस्ट भी दिया था मैंने, वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, बाकी 2 आधे इम्प्लीमेंटेड है, हाफ इम्प्लीमेंटेड। तो आज वाला अच्छा जाएगा। ठीक है, क्रॉस फिनिश। लोड क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट हैपेंड? साइट गया था या इंटरनेट गया है? तो फक मैन, 1 मिनट हो गई शायद। 1 मिनट गया मेरा। आज कम क्वेश्चन से तो हार्ड होगा शायद। You are given 3 digits ABC. 2 of them are equal. The third one is different from them. Find the values that occur exactly once. Find the values that occur exactly once. 1 यहाँ पे अच्छा, 3 यहाँ पे अच्छा। इधर उधर मूव करना बहुत मुश्किल हो रही है। प्रॉब्लम भी क्या है? A Latin square 3 by 3 made up of letters ABC such that in each row the letters ABC appear once and in each column the letters ABC appear once. अच्छा, ABC 1 से ABC 1 से each row में और each column में तो permutations होंगे। ठीक है, you are given Latin square but one of the letters was replaced with a question mark. Find the letter that is replaced. ठीक है ना? Interior of 3 by 3. I plus 3. Set character st dot insert a of I a of pro of I। बहुत गंदा इम्प्लीमेंटेशन है मेरा। पर कैरेक्टर I is equal to a I less than equal to C I plus st dot find of I
इज इक्वल टू एस टी डॉट एंड, तो सी आउट आई एंडल कंटिन्यू। क्या दिक्कत है? Not quite Latin square. Calendar has n buckets, the height of which contains AI wooden squares of length 1. AI wooden squares of side length 1. Can Calendar build a large square of using all? So side length 1. यहाँ 9 1 है, तो क्या किया इसने? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 9 है। और ये क्या है? 14 to मतलब the height bucket contains 8. The height of which contains AI wooden squares of side length 1. 14 to 1 16, right? हो गया। अब 1 2 6 10 15 21 28 no 8 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नो। सम शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। कोई स्टेटस डर लग रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। int n c in n sum is equal to 0 do open c of I sum test is equal to a of I sq is equal to sq rt of sum if sq into sq is equal to sum। 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 2 नहीं है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। डी अननेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या दिक्कत है इसका? Laura was bored and decided to make a simple language using 5 letters ABCD. There are 2 type of letters, vowels, constants, A and D, vowels, BCD, ठीक है। There are 2 type of syllabuses in the language. अरे रे मेलिंग मातारन रा रे। There are 2 type of syllables in the language. CV constant followed by vowel, or vowel with constant before and after. Constant followed by vowel. CV or CVC. For example, BA. Or not. A word is not. Word in the language is a sequence of syllables. Laura has written a word in the language, but doesn't know how to split it into syllables. Word in the language is a sequence of syllables. ठीक है। अच्छा, तो तोड़ना है हमें, मान लो सी वी तोड़ना है। हेल्प हर टू ब्रेक वर्ड्स इनटू सिलेबस। फॉर एग्जांपल गिवन है वर्ड ये है, तो देखो यहाँ पे बी है, ठीक है, सी वी सी से कुछ है, ठीक है। और स्टेटस चेक कर लो। क्यों में
एग्जांपल देख लो, क्या समझ नहीं आ रहा। देखो सी वी ऐसा कुछ है, तो क्या करें यहाँ पे, सी वी सी तोड़ें और फिर वी तोड़ जाएगा ना, तो वोवल से कोई वर्ड स्टार्टिंग है ही नहीं। अगर मान लो दो वोवल्स है तो ये कभी हो ही ना सकता, -1 वाला केस भी होगा ना। क्या 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 It would be split into syllables. The dot represents the syllabus boundary. The input contains multiple test cases. First line, ठीक है तेरा। For each test case, output string will be split into dot between them. If there are multiple possible, the input given such a way that at least one possible string exists. मतलब वही है पॉसिबल स्प्लिट। मतलब देखो अगर कुछ भी दे दी, मान लो सी वी सी दे दी, तो सी वी सी हो रही है तो सी वी सी ले लो। अगर सी वी ऐसा कुछ है तो इसको एक सी वी ले लो, इसको एक सी वी ले लो, है ना। तो इसको सी वी सी करके इसको छोड़ने से अच्छा, अगर मान लो सी वी सी है और अगला वाला वी है तो इसको ले लेना। अगर सी वी सी है ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है तो सी वी ले लेंगे, सी तो ले नहीं सकते तो सी वी सी ले लेंगे और सी का बाद जो है होगा वो वी ही होगा। तो ऐसा वापस कुछ देखेंगे, ठीक है। और लग रहा यही है और कुछ नहीं है तो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चेंज नहीं करूँगा मैं। स्ट्रिंग यहाँ पे मैं चेक करता हूँ फॉर int i = 0, i less than n, और i is less than n, ठीक है। चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ if s of i is equal to a, क्या लिख लो भाई, bool is wow कैरेक्टर ये कैरेक्टर रिटर्न x is equal to e और x is equal to ये यही है ना वोवल का, यही वोवल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, कांस्टेंट को ले सकता हूँ, तो यहाँ पे इफ़ वी ऑफ आई तो होगा ही, इफ वी ऑफ i + 1 भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इफ़ i + 2 इज लेस दैन n, i + 2 इज लेस दैन n, ठीक है। सी वी और सी का बात हो रही है, अगर वो भी वी है तो ले नहीं सकते हैं। अगर ये भी वी है तो ले नहीं सकते हैं। i + 2 भी सी वी या सी वी सी, राइट। अगर i + 3 लेस दैन n है, ठीक है, एंड वी ऑफ नहीं, एंड इज ऑफ सी वी सी, राइट। देखो सी वी सी है, अगर मैं सी वी ले ली और इसके बाद सी होगा, ठीक है। अगर ये फोर्थ वाली कैरेक्टर है i + 3, i 1 0 है तो थर्ड पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो वॉवल है, इज वॉव ऑफ s of i + 3, ठीक है। मतलब मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी यहाँ पे सी वी पे, तो t डॉट पुश बैक s of i t डॉट पुश बैक s of i + 1, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या होगा, i + 2, है ना। तो डॉट भी पुश बैक करनी है, t डॉट पुश बैक डॉट, ये हो गई। यहाँ पे लिखेंगे एल्स क्या करेंगे, t डॉट पुश बैक s of i, t डॉट पुश बैक s of i + 1, t डॉट पुश बैक s of i + 2, सी ले ली, t डॉट पुश बैक डॉट ये ले ली,
करेंगे CRT स्टार्ट से कम ही है भाई, बहुत बड़ा क्यों चल रही है TLE भाई। अच्छा यहाँ पे y=i+3 यहाँ पे ले ली, CBC ले ली तो B पे पहुँच जाना भाई। देखो B है ठीक है, कॉन्स्टेंट है, CED ले ली ठीक है, फिर ये CAC ले ली, B भी, और लास्ट में डॉट नहीं रहनी चाहिए ना, T डॉट पॉप बैक। unnatural language processing। ये प्रॉब्लम Lulila has n glasses arranged in a line. The ith glass has a units of juice in it. Lulila drinks only from odd number glasses while her date drinks from even number of glasses. To impress her date, Lulila wants to find a continuous subarray of these glasses such that both Lulila and her date will have same amount of juice in total if only the glasses in the subarray are considered. More formally, find out if there exist two indices L and R such that ऑड का सम और इवन का सम वहाँ पे सेम है, वो सब अरे का, और यहाँ पे 10⁴ तक है तो ठीक है। टू कंटिन्यूस एलिमेंट्स है तो आंसर यस है ना। स्लाइडिंग विंडो करूँगा हाँ, इक्वल है, इक्वल होनी चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करूँ मैं, स्लाइडिंग विंडो करूँ कि मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे ऐसा कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 मान लो ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 1 और 2 को चेक करूँगा इक्वल है क्या, नहीं है। तो मैं जब 3 को लूँगा तो चेक करता हूँ 1 2 3 हो सकते हैं क्या। बेस्ट है कि मैं 2 को ढूंढूँ ना, 2 तो इक्वल हो जाएगी, नहीं 2 नहीं होगा। अब 1 2 3 हो गई, अब 1 2 3 ले लूँगा, 1 2 3 में चेक करूँगा 1 और 3 है। अगर 2 3 4 ले लूँ मैं, ऑफ इवन लेंथ की ज़रूरत नहीं है ना, 2 3 4 ले लूँ तो नहीं 1 3 2 तो यस ही है, ये 2 लेगा ये 1 लेगा, एस और नो प्रिंट करनी है बस ठीक है। वन 2 11 4 1 5 1 2 ये है ना। इस पर क्या करूँगा मैं, जैसे 1 2 ले लिया, 1 लिया ठीक है। अब यार मैं चेक कैसे करूँ, ये सब है टारगेट सम जैसे ही हो गया ना। अगर मतलब 1 2 में देखो अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं डाल दूंगा कि ऑड में 1 ऑलरेडी आ चुकी है, इवन में 2 आ चुकी है ना। अब ऑड वाले में मैं डाल दूंगा 1 है, फिर इवन में मैं डाल दूंगा, इवन का सम 2 तक आई है। अब फिर वापस जब 11 पे आऊँगा तो ऑड सम कितना हो गया, ऑड सम या तो हो गई 11 है ना, इंडिविजुअल भी ले सकता हूँ। अभी सब बड़े टारगेट सम में कैसे बनाया है कि ये डाला एक ठीक है, फिर इसकी प्रेफिक्स सम डाल देंगे वहाँ पे कि ये पूरा प्रेफिक्स को हटाएंगे ना, समझा, ये पूरा प्रेफिक्स को हटाएंगे। अब मैं जब 11 पे आया तो चेक करूँगा, 11 और 4 पे आया, 11 पे आया तो चेक करता हूँ कि जब मैं 11 पे आया तो चेक करूँगा कि इवन में
इवन में 11 है क्या पहले? क्या करूँ भाई इस क्वेश्चन को? इस वाले केस में ना मैं कैसे करूँ इस क्वेश्चन को? और समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन को कैसे करूँ? ये क्वेश्चन रोमांटिक ग्लासेस बताओ भाई कोई। अभी मैं मान लो पूरे प्रेफिक्स में हूँ, है ना? देखो अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसा कुछ है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। अब मैं इससे यहाँ तक कि प्रेफिक्स का ऑड और इवन में फाइंड कर लिया है ना। यहाँ तक मेरा ऑड सम और इवन सम दोनों पता है मेरे को। अगर इक्वल है तो आंसर यही पे यार किधर, सॉरी, यहाँ से पूरी अरे मतलब करंट का मेरे को ऑड और इवन सम पता है मेरे को, है ना, ऑड सम और इवन सम। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा ना कि अब ये ऑड सम इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो मैं चेक कैसे करूँगा, यहाँ से इसका पहले प्रेफिक्स मेरे को हटाने पड़ेगा, है ना। ये जो पहला प्रेफिक्स है इसका मेरे को हटाना पड़ेगा। अब मेरे को चेक कैसे करूँ कि इसका कैसे हटाऊँ ना, चेक कैसे करूँ मैं इसको कैसे हटाऊँ। अब मैं इसको चेक कैसे करूँगा कि अब सारे पॉजिटिव है क्या, माइनस से हो जाएगा? नहीं, अब मैं किसी एक को विनर मान भी नहीं सकता। पेयर्स में आएगा ना कि इसका प्रेफिक्स अगर मैं हटाऊंगा तो ये पेयर्स में कटेगा। अब मैं ये पेयर को चेक कैसे करूँगी, इसका वो है जैसे इनका डिफरेंस, देखो अगर इसका डिफरेंस अगर डी है ना, इसका डिफरेंस अगर डी है तो मैं चेक करता हूँ कि इसका पहले कभी डिफरेंस आ चुकी है क्या। जैसे मान लो अब ये अब तक का सम हो गई है, मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, अच्छे से देखो। समझ गया मैं, देखो अब मान लो यहाँ पे मेरा सम है फॉर सपोज 8 एंड 10, ये मेरा ऑर्डर इवन का सम है। अब 2 है, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है ना। अगर मान लो पहला मेरे पास आ चुकी है 2 और 4 का डिफरेंस, ये ऑड और इवन का डिफरेंस है ना, तो ये बीच वाले का डिफरेंस कितना हुआ, 6 और 6, राइट, है ना। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ चुकी है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का 8 10 है ना, यहाँ तक का सम, तो इस बीच का ऑड और इवन का सम कितना होगा, 6 और 6, क्या समझ गए ना। तो अब मैं कैसे स्टोर करूँगा, डिफरेंस का काउंट मैं पेयर में स्टोर करूँगा, डिफरेंस का मैप ऑफ वेक्टर डिफरेंस इंट ऑफ वेक्टर ले लूँगा, हो जाएगा ना भाई। ये देखते हैं, ले लेंगे, ठीक है।
int n cnn into a of n cn a of I, ठीक है। मैं लूँगा मैप ऑफ इंट कॉमा इंट ले लूँगा सिर्फ। अब मेरे को ये थोड़ी बताना है, सिर्फ एस नो बतानी है, इंट कॉमा इंट एम पी, ठीक है। अब मैं लूँगा फॉर इंट आई इज इक्वल 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एम पी ऑफ 0 प्लस प्लस कर दे, ठीक है। इंट ऑड इवन इज इक्वल 0, ठीक है। आई मॉड 2 odd plus equal to a of I, if mp of int diff is equal to क्या, diff is equal to नहीं, even minus odd, ठीक है। if mp of diff is greater than 0, check is equal to true, break। check is equal to true break, नहीं तो कंटिन्यू। अब मैं क्या करूँगा, mp ऑफ diff प्लस प्लस, यहाँ पे else पे क्या करूँगा, सेम चीज़ है, इवन प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई, बाकी इंटू डिफ तो इवन माइनस ऑड ही है। ये दो बार क्यों करनी है यहाँ पे ऐसे। चेक करता हूँ, इंट डिफ इज इक्वल टू इवन माइनस ऑड, अगर एम पी ऑफ डिफ ग्रेटर देन 0 है तो चेक इज इक्वल टू ट्रू, बोल चेक, इफ चेक। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 1D में क्या हो गया, डी में क्या हुआ। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, देखो बी है तो सी है ना, ईज ओवल ऑफ आई प्लस 3 नहीं है, नहीं ईज ओवल ऑफ आई प्लस 2 है। बी ए के लिए गलत आ रही ना, 4 है तो मैं चेक कर रहा हूँ, पहला वाला आई प्लस 3 लेस दैन एन, ठीक है, एंड ओवल ऑफ आई प्लस 3, मतलब ये चेक कर रहा हूँ, ये वोवल है, तो मेरे को सी भी लेनी पड़ेगी। टी डॉट पुश बैक एस ऑफ आई, टी डॉट पुश बैक एस ऑफ आई प्लस 1, टी डॉट पुश बैक डॉट आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, है ना। अब आई प्लस प्लस कुछ नहीं है, अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 होता है, इस यहाँ पे पहुँच गया मैं। यहाँ पे सी है और चेक कर रहा हूँ इफ आई प्लस 3 इज लेस देन एन नहीं है, तो मैं इस पर ये कर दी ना, चेक करता हूँ। इफ आई प्लस 3 इज लेस देन इफ ग्रेटर देन एन, है ना, तो मैं पहले चेक कर देता हूँ टी डॉट पुश बैक, सेम ही चीज़ है ना। आई प्लस 3 अगर ग्रेटर देन एन है तो मैं ये कर देता हूँ, दो कैरेक्टर बचे हैं। अब देखो आई 2 पे 2 + 2 4 है,
आई प्लस टू ग्रेटर देन। अब देखो, अब दो कैरेक्टर है सी वी, उसको भी ले सकते हैं। अब 0 + 2 इज ग्रेटर देन 2, तो वी डॉट पुश बैक टू आई इज इक्वल टू आई प्लस टू बाय आई लेस देन, खत्म। एल्स, ठीक है, हो जाने चाहिए इससे। पेनल्टी की वजह से भाई, अनएक्सपेक्टेड एरर सबमिट हुआ है नहीं। वेट, टू कैरेक्टर्स है, 0 + 2 इज ग्रेटर देन 2 है क्या? नहीं, लेस देन इक्वल टू फक। अबे यार ये क्या बकचोदी है इनकी। जस्ट ए मोमेंट, कनेक्शन सिक्योर, प्रोसीड तो करो भाई। हो जाएगा क्यों में। अब ये कब चलेगा? बहुत लंबा चल गया भाई, गलत कर दी मैंने। ये एफ हो गई ना, रोमांटिक क्लासेस हो गई तो जी है। स्टेटस चेक करते रहो भाई। ये greetings, there are n people of on the number line. The ith person is at point A and wants to go point B. For each person A less than B, and the starting and the ending points of all points are distinct. That is, all of two numbers are distinct. All the people will start moving simultaneously at a speed of 1 unit per second until they reach point. While two people meet at the same point, they will greet each other once. How many greetings will be there? People meet at same point, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स पूछ रहा है। देखो, 2 3 1 4, 2 से 3 जाना है इसको, 1 से 4 जाना है, और स्पीड है इसका 1 है ना? तो ये ऐसे इंटरवल्स नहीं है भाई। अब देख, अब ये 2 से 3 चला जाएगा एक स्पीड में, और ये 1 से 4 चला जाएगा, तो आंसर 0 होनी चाहिए। आंसर 1 कैसे होगी? All the people will start moving simultaneously at a speed 1 per second until they reach the final point. अब 2 से 3 जाना है इसको, 2 से 3 गया और रुक गया। अब 1 2, ठीक है, 2 से 3 3 पे मिल गया ना, 3 से 4 0.3 पे मिल गया एक बार। भाई ये क्यों
ठीक है, अच्छी बात है, पेनल्टी काउंट नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स है। देखो अब मैं रिलेशन ढूंढता हूँ, A1 B1 ठीक है, और A2 B2 ऐसा कुछ पॉइंट्स है नंबर लाइन में, A1 ऐसा कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 और ये कभी कैच नहीं कर पाएंगे ना, तो वेट सेकंड भाई, ऑल डिस्टिंक्ट है, ऑल डिस्टिंक्ट है और ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कोई कोलाइड करते जाएगा क्या, मैं ये वाली केस ढूंढ रहा हूँ, कोई कोलाइड करते जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल साइमल्टेनियसली मूव करते हैं और ऑल वो डिफरेंट प्लेसेस पे इनिशियली, है ना। तो ये वही क्वेश्चन हुई ना कि देखो अब मैं 2 से 3 गया, कोई मेरे पीछे से 1 से 2 जा रहा है, तो इस वाले केस में आंसर 0 है, क्योंकि मैं इसकी डिफरेंस देखो, इसकी डिफरेंस है 1 और इसकी डिफरेंस देखो 1 है ना, तो डिफरेंस ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो कोलाइड होगा, तभी होगा। जस्ट लाइक ये मेरा एजम्पशन है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अब मैं मान लो 2 से 5 गया, ठीक है, कोई बंदा 1 से है, मेरे पीछे आ रहा है 1 से है, ठीक है। अब कोई बंदा मेरे से पहले गया है 1 से और चेक किया 6 है, 1 से 6 जा रहा है, तो पॉइंट ऑब्वियसली 5 से ग्रेटर है, ये एंडिंग पॉइंट 5 से ग्रेटर है ना, तब ये चल गया, वरना वरना कभी हो ही नहीं सकता। देखो अब ये एंडिंग पॉइंट जो है वो 5 भी है तो चलेगा, 1 से 5 चलेगा, डिफरेंस तभी इसका 4 बनी, तभी इसका 3 बनी ना। तो मैटर ये नहीं है, मैटर ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ऐसा ही है। अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा जितने इस 2 से छोटे हैं, जिनका 2 से छोटे स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है, और उनका एंडिंग पॉइंट जो है वो 5 का बाद है, 2 5 और 1 4, कोई मतलब नहीं है इस केस का कोई मतलब नहीं है ना। अब मैं ऐसा पेयर्स ढूंढूंगा जो 2 से लेफ्ट में है, ठीक है, जो 2 से लेफ्ट में है, और इसमें ये है। अब देखो अब 10 पावर 5 केसेस है, तो मैं इसको अप्रोच कैसे निकालूंगा भाई, ये रीलोड कर दे भाई, दे दे, एक्सेप्ट है, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया, डी एक्सेप्ट हो जा जल्दी, फॉर्म भी कर दी भाई। अब मैं देखो अब हमारे पास 10 पावर 5 पॉइंट्स है, अब ठीक है, 10 पावर 5 पॉइंट्स है ना। 10 पावर पॉइंट्स है तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा, अब 2 6 पे हूँ तो मैं चेक करूँगा कि 2 से कम कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है, और उनका एंडिंग पॉइंट का वो क्या है। अब मैं ये वाली चीज़ जाके चेक नहीं कर सकता, और 10 पावर 5 वाली दे दी तो मैं 10 पावर 5 का मतलब सब लेफ्ट वाले चेक करनी पड़ेगी ना, तो ये नहीं करूँगा ना मैं। तो अब यही हो गया ना, मतलब 2 से 5 है, 1 से 2 से 5 है और 1 से 5, 2 का +1 कर दूंगा मैं। अब कोई भी मान लो 3 से स्टार्ट हुआ बीच में और 4 में एंड हुआ, ये वाली केस भी ऐड कर लेते हैं, 3 से 4, ठीक है। अब देखो 2 से 3 गया, ये 3 से 4 गया है, 4 पे रुक गया। अब मैं देखो 3 से 4 गया तो मैं ये कर दूंगा ना, वन मान लो, 2 3 4 5 7। तो देखो अब 3 से 4 है, तो मैं 3 से स्टार्ट किया और 4 पे एंड हुआ, है ना, तो सभी अपने एंडिंग पॉइंट्स पे रीच होंगे ना। अब कोलिजन वाली थोड़ी बात है, मेरे को एक चीज़ बताओ, सभी अपने एंडिंग पॉइंट्स पे रीच होंगे। अब 2 से 5 तक जा रही है और कोई पॉइंट वापस 1 से 6 जा रही है, तो 6 पे थोड़ी रोक दूंगा मैं, 6 को 1 कर भी दिया तो 5 तक जा रही है ना।
क्या करूँ मैं, देखो, या फिर मैं 3 से स्टार्ट करके इनकी लेंथ नोट कर लूँ क्या। 3 से स्टार्ट करके 4 तक जा रहा हूँ, एक आगे जा रहा हूँ, है ना। कभी इनसे मिल नहीं पाएंगे, सभी जाते रहेंगे साइमल्टेनियसली, तो सारे एंडिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। नया टाइम क्यों हो रही है, एक्सेप्टेड। क्या ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। इसने ये भी कर दिया क्या, F4G। बाइंड इंडेक्स ट्री से हो जाएगा क्या। अब मेरे को पता है सारे अपने एंडिंग पॉइंट्स पे रीच होंगे, तो मैं एक इंटरवल के लिए, हर एक इंटरवल के लिए ना उसकी एंडिंग पॉइंट स्टोर कर लूँगा, है ना। उसकी एंडिंग पॉइंट स्टोर कर लूँगा और चेक करूँगा कि मल्टी मैप में डाल दूंगा और चेक करूँगा कि इस वाले एंड पॉइंट, इस वाले रेंज में कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स रुके हैं। वो इसके बाद भी हो सकता है साइमल्टेनियसली, तो सारे मैं मल्टी मैप में डाल दूंगा कि सबका एंड पॉइंट मल्टी मैप में डाल दूंगा, है ना। और मैं हर एक के लिए वापस रिटर्न करूँगा और चेक करूँगा कि इसका कितना है। सही है ना, ये सही है शायद। देखो चेक करता हूँ मैं, जैसे ये वाला केस है, तो मैं पहले एंड पॉइंट्स डाल दिया है, 6 है ना, 6 है, 9 है, 5 है, 8 है, 10 है और 100 है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट्स कुछ भी हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे को रेंज में बताओ 2 से 6 में कितने एंड पॉइंट्स है। 1 है, 5 है, तो आंसर 1, 2 से 6 1। ठीक है, और बताओ 3 से 9 के बीच में कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 1 + 3, है ना। फिर 4 से 5 तक, 4 से 5 तक कुछ नहीं है, वो किसी को नहीं मिट होगा। ठीक है, 1 से 8 तक 1 2 1 2, सिर्फ 1 2, सिर्फ 1 2, राइट, 1 2 वन साइड हो गया। 7 से 10 1 2, और -2 से 100 सभी आएंगे 1 2 3 4 5, +5 डाल दे तो 5 + 4 9, 9 + 4 13 हुआ ना। आंसर कितने है, 9 ही है। क्या हो गया, 9 क्यों है, 9 क्यों है, 9 क्यों है। अब 9 क्यों है, एंड पॉइंट ये 6 पे आके रुकेगा, ये 9 पे आके रुकेगा, ये 5 पे आके रुकेगा, ये 8 पे आके रुकेगा, ये 10 पे आके रुकेगा, ये 100 पे आके रुकेगा, है ना। अब मैं चेक करूँगा कि 2 से 6 के बीच में कितने पॉइंट्स है। 4 से 5 जाकर रुक जाएगा और 2 से 6 में रीच हो जाऊंगा, तो 4 और 5 को रीच होऊंगा, बस यही है ना। अब ये है कि क्या पूछा इसने, when two people meet at the same point they will greet each other once, how many greetings will there be। person can still greet other people even if they have reached the final point, यही पॉइंट है। ठीक है, ये छोड़ो। अब आंसर 9 है, तो पेयर्स बन रहे हैं क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मान लो अब मैं 2 और 6 के लिए चेक कर रहा हूँ और 5 डाल दिया, है ना, 1 डाल दिया, 2 और 6 4 5 का 1 डाल दिया।
अब 3 और 9 के लिए मैं क्या चेक करूँगा, 3 से स्टार्ट हो जाए और 9 तक जाए ना। तो 3 और 9 के लिए मैं चेक करता हूँ, इसको मीट हो जाऊँगा, 6 पे रुक जाएगा ये। 4 5 3 से 6 ना, ये 5 पे जाके रुक जाएगा तो 5 पे भी मीट कर लेंगे। 3 हो गए ना। -2 से 100 तो ये बाकी 5 को विजिट करेगा ही, तो ये यहाँ पे ही 4 हो गया। तो 9 कैसे हुआ इसका, 5 + 4 9 कैसे हुआ? कुछ मिस हो रहा हूँ क्या मैं? कुछ मिस हो रहा हूँ क्या मैं? 18 4 और 5 के लिए मैं चेक करूँगा, 4 और 5 के लिए कुछ है ही नहीं, तो 2 कैसे डाल दी मैंने? 4 और 5 के लिए 0 डाल दी ना। कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है ना। 4 और 5 के लिए 0 है। अब 1 और 8 के लिए, अब 1 और 8 के लिए 6 5 2 ही है, सही है। तो यहाँ पे 5 हो गया तो 10 हो गई ना। 7 और 10 के लिए ये 9, ये भी तो है। मैं सिर्फ एंड पॉइंट से कर रहा हूँ, पर वो एंड पॉइंट पे आना भी तो चाहिए, समझे? अब 7 और 10 पे हमें साइमल्टेनियसली वो स्टार्ट करेगा, पर डिफरेंस भी तो देख रहे हो, डिफरेंस इसका 3 है पर इसका डिफरेंस है 6। अब 6 डिफरेंस पे वो आएगा, और ये भी चेक करूँगा, जिनका डिफरेंस भी चेक करनी पड़ेगी ना, जिनका डिफरेंस भी इतना है। तो एक बात मैं बताऊँ तो डिफरेंस क्या है, 4 टाइम पे मैं आऊँगा 6 तक, या फिर मैं 6 पे आऊँगा 4th टाइम तक, है ना। 4th पे आऊँगा 6 तक, 4th टाइम में, फिर 6 टाइम पे आऊँगा मैं 9th तक। ठीक है, मैं अभी ये समझ गया, ये स्पीड और वो समझ। 7 और 10 पे जब मैं आऊँगा तो क्या चेक करूँगा कि जो पॉइंट 7 से लेस है, नहीं, जिनका डिफरेंस ना, इनका बीच में लाई होनी चाहिए रेंज, और मैं बीच में लाई वाली केस तो ऐसे ही नहीं बता सकता। और बीच में लाई मान लो सभी लाई करते हैं, तो सभी के लिए मैं एक थोड़ी करूँगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करूँगा। टाइम क्या है? 5 सेकेंड्स है। आर दे एक्सपेक्टिंग ब्रूट फोर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ अब क्या है। अब मैं नहीं, अब देखो, अब मुझे एंड पॉइंट्स पे भी चेक करनी है ना, कि उनकी गैप ज़्यादा, तो क्या गैप ज़्यादा सब चेक करूँगा ना। वो नहीं है, अब क्या चेक करूँगा मैं? तो मान लो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस डी है। अब डिस्टेंस वाले कंस्टेंट भी आ गया, कि मतलब डिस्टेंस में भी रहनी है अब, डी डिस्टेंस पे। अब मैं सब पॉइंट्स को लूँगा,
है ना। सेट में टाइमिंग के हिसाब से डाल दूंगा और ये जो चेक करूँगा तो उसके हिसाब से निकालते जाऊँगा। क्या सही है? अब मैं टाइमिंग के हिसाब से डालूंगा तो पहले पहुंच जाएगा, डिफरेंस के हिसाब से सॉर्ट कर लूँगा सबको। पहले पहुंच जाएगा 4 5, तो मैं 5 पे डाल दूंगा मल्टी मैप में, ठीक है। फिर क्या, अब फिर ये गलत है ना। अब मुझे वापस जब मैं 2 6 के लिए चेक करूँगा, वो 3 9 के लिए चेक करूँगा, अब ये सब के लिए भी चेक होनी चाहिए ये 5 वाली केस। अब 4 5 जल्दी पहुंच गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब सेकंड जल्दी कौन सी पहुंचेगी? सेकंड जल्दी पहुंचेगा 7 और 10, राइट। तो ये कर दी 7 और 10 के लिए 4 5 काउंटर सेक्शन कुछ है ही नहीं, तो 0 है, ठीक है। 4 5 हो गया, 7 10 हो गया। अब डिफरेंस क्या है? 4 इसका है, 2 6। अब 2 और 6 के लिए मैं चेक करूँगा, 5 एक बच गई, एक हो गई, है ना। फिर नहीं, बीच में तो एंट्री था 5 और 6। अब अगला क्या है? 4 1 और 8, है ना। 1 और 8 में क्या होगा? 2 आ जाएगा ना 1 और 8 के लिए। 2 6 हो गया, 7 है, 3 9 डाल दो, 3 9 डाल दो। 3 9 के लिए आएगा 2, है ना। 3 9 के लिए आएगा 2, 5 और 6, ये 9 हो गया, 3 9 भी हो गया। अब 1 और 8 के लिए मैं डालूंगा तो आएगा 2, है ना। 5 यहाँ पे हो गया, 1 और 8 भी हो गया। अब -2 और 100 के लिए सब पॉइंट्स हो गए 5। तो आंसर 10 बन रही है अभी भी, 9 कैसे बनेगा? सोच, आंसर 10 बन रही है, 9 कैसे बनेगा? टाइम ले, थोड़ा अच्छे से सोच, ये अच्छा अप्रोच होता है। अब देखिए, पहला है 4 5 ना, इसको सॉर्ट कर लिया तो पहला आ जाएगा 4 5, इसकी डिफरेंस क्या है? 1 है, और इससे पहले कोई मीट नहीं हो सकती, तो 5 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और 0। अब अगला डिफरेंस है 7 10, है ना। 7 10 का भी 0 है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला डिफरेंस है 2 6। 2 6 के लिए आंसर बनेगा 1, है ना। ठीक है, 1 बन सकती है 2 6 के लिए, मतलब पहले से 4 5 है तो 4 5 पे रीच हो जाएगा, और ये 2 से 6 जाएगा तो 1 बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 डाल देंगे, है ना। फिर 3 और 9, 3 और 9 के लिए मैं यहाँ से क्या होगा? 3 से 9 जाएगा तो 5 रीच हो जाऊँगा, 3 से 9 जा रहा हूँ तो मैं 5 को रीच कर सकता हूँ क्या? देखो, 4 और 5 है, वो एक स्टेप में हो जाएगा। हो गया। और 6 को रीच कर सकता हूँ क्या? 2 और 6 है, और ये क्या है? 3 और 9 है। नहीं ना, ये देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इससे छोटा है, 3 9 है, ये 2 6 है। ये 2 से यहाँ जाएगा, ये पर 3 से चला जाएगा ये, है ना। ये 3 से आगे निकल जाएगा, 3 4 5 6, ये 3 से आगे चला जाएगा। 2 और 6 को 3 और 9 कभी टच नहीं कर पाएगा, बस भले ही 6 पे रुक जाए, पर ये क्रिएटर क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अब ये कहाँ चेक करूँगा? अब स्टार्टिंग पॉइंट, अब मैं सब पे मैनुअली चेक नहीं कर सकता।
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में इनको स्टोर करूँगा, राइट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में स्टोर कर इसको, तो फिर ये बनेगा तो बनेगा 4 5 7 10 2 6, है ना। तो मैं जब 3 और 9 पे आऊँगा तो चेक करूँगा 2 से बड़े कितने हैं इसमें और 6 से छोटे कितने हैं इसमें। ये चेक करनी है कि 2 से बड़े कितने हैं लेफ्ट वाला में और 6 से कितने हैं। भाई सच मार के 2 पॉइंट्स निकाल लूँगा यहाँ, फिर ये आंसर बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो 2 और 6 के लिए बनेगा, अभी 3 और 9 के लिए बनेगा। 3 और 9 के लिए क्या बनेगा, ये 3 से आगे चला जाएगा, वो 2 से नहीं, 3 और 9 के लिए बनेगा 4 और 5, बस 7 और 10 थोड़ी बनेगा, 10 पे रुकोगे नहीं है, तो ठीक है। 3 9 के लिए बन गया आंसर, वो एक और बन गया, ऐड हो गया, है ना। 3 9 भी हो गया। अब 1 8 के देखो, अब 1 से बड़े वाले हो गए तो नहीं हो सकता ना। अब 1 से बड़े वाले चाहिए और 8 से छोटे वाले चाहिए। अब 1 से छोटे वाले चाहिए और 8 से बड़े वाले चाहिए। 1 और 8 के लिए क्या, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, या तो कम्प्लीटली अंदर होनी चाहिए। ये देखो यार 2 6 भी है तो 1 से 8 के बीच में हो ही जाएगा ये। इसका एंडिंग पॉइंट कम्प्लीटली अंदर है, या तो एंडिंग पॉइंट कम्प्लीटली अंदर वाले होंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इसका कम्प्लीटली अंदर है ना, 6 और 5 का, 9 का, तो इनका सही है 3 और इसका 5, तो ऐसा बनेगा। तो केसेस के ऑब्जर्वेशन क्या है, एंडिंग पॉइंट्स should be less, ending point finish point should be less than current finish, ये वाले केस हो गया। प्लस अब देखो, अब एंडिंग पॉइंट्स करंट फिनिश, सॉरी क्या सोच रहा हूँ मैं, अब बताओ मैं क्या सोच रहा था। ये बोल रहा था ना कि देखो 2 और 6 के लिए 3 और 9 हो सकता है, तो मैं ये सोच रहा, नहीं 3 और 9 के लिए 2 और 6 हो सकते हैं क्या। 3 और 9 के लिए 2 3 में 6 पहुंच जाएगा, आंसर हो सकते हैं ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, भूल गया मैं, 1 मिनट रुको, वापस करता हूँ मैं, ठीक है। पहले सबसे छोटा वाला डाल देंगे 4 5, ठीक है, 0 है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, 7 10 है, 7 के लिए 0। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, 2 6, है ना। 2 6 के लिए आंसर 1 बन जाएगा। 2 से बाद स्टार्ट हो गया और 4 5 है ना 6 से पहले, तो 2 6 भी सही है। 2 6 यहाँ डाल दे, आंसर 1 हो गया। 2 6 के लिए क्या होगा, 4 5, है ना। 2 6 हो गया, 4 5 हो गया, 7 10 हो गया। अब अगला क्या है, 3 9। ये 3 9 के लिए क्या क्या हो सकता है। अब देख, अब 3 9 के लिए
2 6। अब 3 और 9 के लिए 2 6 आंसर हो सकता है क्या? इसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए ना, इसका नेक्स्ट स्टार्ट होने। अरे यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। अब 3 और 9 के लिए मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा पीछे है उनसे कोई मतलब नहीं है ना, जो मेरा बाद में है। 3 और 9 के लिए मैं ये चेक करूंगा कि 2 6 हो नहीं सकता, सिर्फ 4 और 5 होगा, है ना। 3 9 के लिए सिर्फ 4 और 5 होगा, क्योंकि 3 के बाद जो स्टार्टिंग है, मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो 3 के बाद स्टार्टिंग है और 9 से पहले एंडिंग है। समझ गए? सिर्फ 4 5। अब ये क्यों 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 कैमरा क्या हो गया, क्या हो गया बता। अच्छा मैंने इस पर रिलोड नहीं मारा। अब ये ले ले, अब मेरे को क्या करनी है, डिफरेंस के हिसाब से सॉर्ट करनी है ना। तो मैं एक और वेक्टर ऑफ पेयर ले लूँगा। टाइम, ठीक है, टाइम डॉट पुश बैक, डिफरेंस क्या है, वी पी ऑफ आई डॉट सेकेंड माइनस वी पी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। ये हो गई एक चीज़, डिफरेंस हो गया। फिर इंडेक्स आई, ये हो गया। अब मैं सॉर्ट करूँगा, सॉर्ट टाइम डॉट बिगिन टाइम डॉट एंड। अब मैं डालूंगा मैं सेट। अब सेट में नहीं कर सकता तो कौन सी डेटा स्ट्रक्चर डालूँ कि जो अपने आप सॉर्ट कर ले, है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स अपने आप सॉर्ट करने के लिए। एंडिंग पॉइंट्स पता है तेरे को, अब स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा होनी चाहिए। नॉर्मली जब तू सॉल्व करेगा तो पहले 4 5 डाल दिया, फिर अगला 7 10 डाला, तो ये किसके साथ सॉर्ट हो रहा है? तो मैंने स्टार्टिंग के हिसाब से सॉर्ट किया, ठीक है, फिर वो एंडिंग के हिसाब से सॉर्ट नहीं होंगे ना भाई। अब सॉर्टिंग के हिसाब से तूने सॉर्ट कर दी तो वो एंडिंग के हिसाब से एंड नहीं होंगे।